چمن رہ جائے گا رسول اللہ کا دین حسن نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے گستاخیوں کے عامل مٹ جائیں گے رسول اللہ کے غلام اور ان کا لگایا نعرہ صبح قیامت تک گونجے گا کہ من سب نبی من سب نبی میرے بابا جی نے فرمایا تھا مزار اقبال پہ بیٹھ کے جب عمران نے کہا تھا کہ میں فرانس کے بندے کی گستاخی کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اس پہ حملے کی بھی مذمت آپ نے فرمایا تھا میں اقبال کے سامنے تیرے اوپر لعنت ڈالتا ہوں عمران بے شمار لعنت آج سلمان رشدی کی حمایت کر کے یہ اور لعنتوں کا مستحق ہو گیا بات ثابت ہو گئی کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا بلا تاخیر قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ محمد صاحب سے نظری صاحب امیر محترم آپ سے مخاطب ہوتے ہیں لبیک الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ملعونین اینما سقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین معزز سامعین محترم میری ایک بڑی تقریر ہے اور ایک بہت بڑی تقریر ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ الفاظ زیادہ ہوں لیکن انشاءاللہ ان الفاظ کا وزن اتنا ہوگا کہ ایک تو جو ہمارا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اس کو بھی محسوس ہوگا کہ کیا دباؤ ہے اور ایک وہ شیطان جو ابھی وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اترا ہے اور ایک وہ شیطان جو ابھی وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اترا ہے اسے بھی محسوس ہوگا انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ادھار تھا ابھی تک مائک میرے ہاتھ میں نہیں آیا تھا میں اس حیوانیت کی آنکھیں رکھنے والے وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ 75 سال خوشی منانے کا دن ضرور تھا کہ پاکستان کی آزادی کو 75 سال ہوئے تھے لیکن او بے شرم او بے حیا بیٹیاں نچانے کا دن وہ نہیں تھا وہ بیٹیاں نچانے کا دن نہیں تھا وہ شکر منانے کا دن تھا اگر تمہیں بیٹیاں زیادہ نچانے کا شوق تھا تو ہمیں بتاتے کہ ہم تمہیں امرتسر سے دوپٹے منگوا کر تمہارے سروں پر ڈالتے کہ او بے شرمو 90,000 بیٹیاں چھوڑ کر آئے ہوئے ہو تم بیٹیاں نچوانے کے لیے وہ جو بھی ناچی وہ میری قوم کی بیٹی تھی وہ میری بہن تھی تم ان کے رقص دیکھتے رہے سامنے بیٹھ کر اور وہاں بڑے بڑے ملا اور بڑے بڑے پنڈت وہ بھی آنکھیں کھول کر اور رقص و سرور کی محفلیں نچاتے رہے ہم نے پاکستان ناچنے ٹراپنے کے لیے نہیں بنایا تھا ابھی ایک تازہ تازہ خبیث جو ناچنے ٹراپنے والا ہے اس کو مسا مسا کرسی سے نیچے اتارا ہے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا ٹبر ہی کنجروں کا ٹولہ ہے وہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہو وہ جناب پی ڈی ایم کی صورت میں ہو اس سے تو پتہ چل چکا ہے کہ یہ سارے کنجر طبیعت کے ہیں کہ جس دن ہمارے بڑوں نے جس دن کا خواب دیکھا تھا جس دن قربانیاں دے کر لاکھوں شہیدوں نے اپنا خون دے کر 14 اگست والے دن پاکستان حاصل کیا تھا اس دن تم قوم کی بیٹیاں نچا کر قوم کو دکھا رہے تھے ڈوب کے نہیں مرے تم اس دن تمہیں غیرت نہیں آئی کوئی زمین نہیں پھٹی سارے سربراہان ملت اور ملک ریاست اس وقت بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کا ناچ دیکھ رہے تھے
कितने डूब मरने की बात है, कितनी गैरत की बात है कि ऐसे बेशरम जो अपनी कौम की, रोहिला किस कदर जालिम था जफाकश्ता, निकाली शाह तैमूर की आंखें, किस कदर जालिम था, लेकिन उसने एक बात की थी कि शाह तैमूर के खानदान को हुक्म दिया कि मेरे सामने रक्स करो, लेकिन वो रक्स देख नहीं रहा था, उसने आंखें बंद की हुई थी, वो गैरत देख रहा था। लेकिन तुम जैसा बेगैरत कौन होगा जो आंखें खोल के अपनी मिल्लत की बेटियां नाचते हुई देख रही थी। ये था मेरा पैगाम उसको। और वो दूसरा लानती जो कल का बददियानत तो था, आज लानतों का मुस्तहिक भी है। और वो कहता है कि सलमान रुश्दी मलून पर जो हमला हुआ है मैं उसका हामी नहीं। मैंने कहा उसका जो हामी नहीं वो हलाली नहीं, पक्का हरामी है। शाह तैमूर की आंखें, किस कदर जालिम था, लेकिन उसने एक बात की थी कि शाह तैमूर के खानदान को हुक्म दिया कि मेरे सामने रक्स करो, लेकिन वो रक्स देख नहीं रहा था, उसने आंखें बंद की हुई थी, वो गैरत देख रहा था। लेकिन तुम जैसा बेगैरत कौन होगा जो आंखें खोल के अपनी मिल्लत की बेटियां नाचते हुई देख रही थी। ये था मेरा पैगाम उसको। और वो दूसरा लानती जो कल का बददियानत तो था, आज लानतों का मुस्तहिक भी है। और वो कहता है कि सलमान रुश्दी मलून पर जो हमला हुआ है मैं उसका हामी नहीं। मैंने कहा उसका जो हामी नहीं वो हलाली नहीं, पक्का हरामी है। इसलिए कि कुरान के फैसले को जो न माने वो हलाली नहीं हो सकता। कुरान का फैसला है मलऊनीन ऐनमा सुकिफू उखिजू वकुत्तिलू तक्तीला, जहां मिले पकड़े जाएं और फिर क्या करना है, वकुत्तिलू काट के रख देना है। बाबा जी की बात जो बाबा जी ने उम्मत को बयानिया दिया है, मन सब्बा नबीयन, बाबा जी ने क्या वट के रख देना कि वो शेर दा बच्चे ने 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर 12 वाली खंजर 12वीं आने दिन आ जाए और पूरी उम्मत खुश है। पूरी उम्मत का उसने वजन हल्का किया। और अलामा साहब आप कह रहे थे क्या कि वो कहते हैं कि हमने ये सिर्फ जिहाद नहीं है, ये मजलूमों की मदद करना। कुछ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ जिहाद ये नहीं है कि काफरों को कत्ल करो, बल्कि ये भी है कि मजलूमों की मदद करो। हुजूर के गुस्ताख को कत्ल करना सारे मुसलमान मजलूमों की मदद है। मुसलमान के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म यह है कि उसके सामने उसके हबीब की गुस्ताखी हो जाए, उसके नबी की गुस्ताखी हो जाए। और जब माँ बकाउल उम्मत बाद शत्म नबी तुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी नहीं आती, तुझे तो रूहानियत पढ़नी नहीं आती, तुझे क्या पता हो कि उम्मत जिंदा ही नहीं रह सकती जब तक वो अपने हबीब के बदला न ले। लाख पर्दों में भी, एक मिनट जी, लाख पर्दों में भी छुप कर बैठा हो, जहां गुस्ताख बैठा होगा इंशाअल्लाह गाजी इल्मुद्दीन का वारिस वही उसको इंशाअल्लाह जाकर पकड़ेगा। तुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी नहीं आती, तुझे तो रूहानियत पढ़नी नहीं आती, तुझे क्या पता हो कि उम्मत जिंदा ही नहीं रह सकती जब तक वो अपने हबीब के बदला न ले। लाख पर्दों में भी, एक मिनट जी, लाख पर्दों में भी छुप कर बैठा हो, जहां गुस्ताख बैठा होगा इंशाअल्लाह गाजी इल्मुद्दीन का वारिस वही उसको इंशाअल्लाह जाकर पकड़ेगा। मैंने कहा था ना कि अल्लाह ताला अपनी हिकमतों से इसने जो अपने ऊपर पर्दे डाले हुए हैं एक एक को करके तार तार चाक चाक करेगा। देख लिया तुमने, रियासत मदीना का दावेदार, इस्लामोफोबिया का ठेकेदार, और जनाब आज इश्क रसूल का दम भरने वाला, और जनाब जुतियां उतार कर कौम को आंखों में धूल झोंकने वाला। देख लिया उसने क्या हरकत की कि एक बात आई, काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल। कौन कहता है, कौन के
से मुसलमान की मौत मर। ओए तुझे क्या पता हो कि उस गाजी ने, उस मर्द मुजाहिद ने कैसे पहुंचकर उस तक जनाब अपने नबी का बदला। और तू तो वो है जो कहता था कि जनाब मैं कश्मीर लेकर दूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। हमारी कौम की यादाश्त बड़ी थोड़ी है, लेकिन मैं उस गाजी को सलाम करता हूं जिसने इतने साल अपने नबी के बदला लेने के लिए वो बात अपने दिल के अंदर और दिमाग के अंदर रखी। बगैर स्पीकरों के नारा लगा रहे थे। हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूसे रिसालत के लिए जो काम करे, तू कहता है कि जनाब इसका मैं हामी नहीं हूँ इस बात का, तो जो तेरे वो नाचने टापने आजादी वाला एक काम करे, वो जनाब एक मैंने तो पहले कहा था कि नचन वालियां दे बालां दा बास्ता कार घाट नहीं है। अभी तो बहुत सारी मंजिलें बाकी हैं, अजय तक जेल आई सामने। और हमारे बाबा जी तो हमें सबक पढ़ा कर गए हैं कि आती है नरग़े रहज़न से सदा, फराज़दार से देख लूं कहीं कारवाने सहर ना हो। हमारे बड़ों ने तो फांसी के फंदे देकर चूमे थे और आंखों पर लगाए थे कि जे यार दिना दी मिली सूली झूठा ले लिए। अभी तो बहुत सारी मंजिलें बाकी हैं, अजय तक जेल आई सामने। और हमारे बाबा जी तो हमें सबक पढ़ा कर गए हैं कि आती है नरग़े रहज़न से सदा, फराज़दार से देख लूं कहीं कारवाने सहर ना हो। हमारे बड़ों ने तो फांसी के फंदे देकर चूमे थे और आंखों पर लगाए थे कि जे यार दिना दी मिली सूली झूठा ले लिए। हाँ, पीछा ना हटिए। पंजाबी कहे कि जो यार के नाम का झूला मिले सूली पर भी तो वो ले लेना चाहिए, पीछे क्यों हटे। और यहाँ पर तो सिर्फ आजादी के नाम की एक जनाब FIR कटी है, तो जनाब डेस्क तो व्हील चेयर ते आ गए, एक व्हील चेयर ते बैठे हुए सी जिन्हें पूरी उम्मत नूं खिलार देता सी। और बाबा जी कह के गए तुसी मेरे नाल दोहराना कि ये जबरो कहर नहीं, 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 ये जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बाने। हाँ, गल्ला करके और सिर्फ नाच टप के पुत्र आजादी दी जंगा नहीं लड़िया चांदियां, आजादी दी